Hello dear students, this is Praveen Sharma, Physics Mentor. In this video lecture series, you will get detailed solutions with some tips and tricks of NEET previous year questions. In lecture 1, we have completed the part 1 of current electricity chapter. This video lecture, we will do part 2 of current electricity chapter. So without losing any time, let's begin. The first question is, two heaters X and Y have power rating of 1 kilowatt and 2 kilowatt respectively. Those two are first connected in series and then in parallel to a fixed power source. The ratio of power outputs of these two cases is, so first they are connected in series. So whenever the resistances or any electrical devices are connected in series or in parallel, and you are asked to find the equivalent power or total power, then we have the formula for series combination. We have the formula 1 by ps is equal to, for series combination we have the formula 1 by ps is equal to 1 by p1 plus 1 by p2. On further solving, you will get ps is equal to p1 p2 by p1 plus p2. Put the value. p1 is x का पावर कितना दिया है 1 किलोवाट 2 किलोवाट, तो दिस इज 1 multiplied by 2 by 1 plus 2. So when they are connected in series, the total power output will be, that is 2 by 3 kilowatt. So this is the power when they are connected in series. Now when they are connected in parallel, so for parallel we have formula P1 plus P2. P1 plus P2 is equal to 1 plus 2, and finally we have 3 kilowatt. So this is the power output when they are connected in parallel, total power output. ये सिंपल पुट द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला लगा देना है. ये फॉर्मूला होता है सीरीज के लिए और ये वाला फॉर्मूला होता है पैरेलल के लिए. दो बल्ब्स हैं या दो हीटर्स हैं तो आपने इस तरीके से किया, तीन होते तो वो प्लस 1 बाई p3 भी आ जाता इस तरीके से. ठीक है. नाउ यू हैव टू फाइंड द रेशो. तो रेशो निकालने के लिए पहले किसके बारे में कमेंट किया गया है, सीरीज के बारे में, उसके बाद पैरेलल. तो रेशो विल बी ps over pp, दैट इज पावर फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पावर फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कितना आया है 2/3 और ये आया है 3. तो दिस इज 2/3 डिवाइड बाई 3, दैट इज 2/9. So option A. Next question. Two resistors of resistance 100 ohm and 200 ohm are connected in parallel in an electrical circuit. The ratio of the thermal energy developed in 100 ohm to that in 200 ohm in given time is. So since both are connected in parallel combination, so voltage must be same for both, है ना. And for a given time, yeah, in a given time, it means that time interval for being the supplies given to these resistors is also same. So we have the formula for thermal energy developed, that is V square by R multiplied by T, where V voltage supply same in both the cases, time interval is also same. तो यहाँ से H क्या आ जाएगा, H is inversely proportional to R. देखिए कांस्टेंट हो गया, है ना. सेम यही मेथड हम लेक्चर 1 में भी देख चुके हैं, मेथड ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. इक्वल, ये वाला जो एक्सप्रेशन होता है इक्वल वाला, इक्वलिटी वाला एक्सप्रेशन, इसके बाद हम प्रोपोर्शनलिटी वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं. तो H इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R, और यू कैन से H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. So we have to find the ratio of thermal energy developed in 100 ohm. मतलब इसको लिखेंगे ऐसे, this is thermal energy developed in 100 ohm and this is thermal energy developed in 200 ohm. तो this is ये एक तरीके का लिखने का तरीका हो गया, है ना. So from this equation it is clear that H is inversely proportional to R, है ना. It means that the thermal energy produced in 100 ohm resistance is H100. ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो 100 ohm रेजिस्टेंस में जो हीट डेवलप हुआ. तो ये 100 ohm कहाँ पर आएगा बच्चों, नीचे आएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है. व्हाट इज दिस, दिस इज हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन 200 ohm रेजिस्टेंस. तो ये डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो क्या आएगा, ऊपर आएगा. इस रिलेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, इनवर्स है, ये ऊपर तो ये नीचे. 100 ohm के करस्पॉन्डिंग हीट ऊपर आया तो 100 ohm रेजिस्टेंस नीचे, वैसे यहाँ पर. सो द आंसर इज 2/1, दैट इज यू कैन राइट 2:1, ऑप्शन बी. तो ये मेथड ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से हो गया. नेक्स्ट, which of the following acts as a circuit protection device?
या आप 10th में भी पढ़ते थे? बताइए, 10th का क्वेश्चन है ये, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। आपको पता है हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। A filament, next question. A filament bulb 500 watt 100 volt is to be used in a 230 volt mains supply. When a resistance R is connected in series, it works perfectly and the bulb consumes 500 watt. The value of R is. पहले बल्ब के बेसिक प्रिंसिपल को समझते हैं। कभी भी बल्ब का रेटिंग दिया हुआ है 500 watt 100 volt. What does it mean? It means that when the bulb gets power source or battery source of 100 volt, it consumes 500 watt and it glows with 100% brightness. मतलब जितने ब्राइटनेस के लिए बल्ब डिजाइन किया गया है वो उतने 100% ब्राइटनेस से ग्लो करेगा। तो ये होता है इसका रेटिंग। इसका मतलब यही होता है, अगर 100 वोल्ट इसका क्या हो गया, इसका रिक्वायरमेंट है, इसका डिमांड है बल्ब का, अगर 100 वोल्ट इसको चाहिए, खुराक है इसका, अगर आप इसे 100 वोल्ट देते हैं तो वो अपने 100% ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा। अगर आप इसको 100 वोल्ट से कम सप्लाई देंगे, है ना, इफ द पावर सप्लाई इज लेस देन 100 वोल्ट देन डेफिनेटली इट्स ब्राइटनेस विल बिकम डीम, मतलब ब्राइटनेस में कमी आ जाएगी। एंड इफ द सप्लाई बिकम्स ग्रेटर देन 100 वोल्ट then the bulb will not glow, its filament gets burn. ठीक है, बल्ब जलेगा नहीं, जल जाएगा। ठीक है ना। सो एक्चुअली यहाँ पर अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसका रिक्वायरमेंट कितना है खाना, है ना, डिमांड कितना है इसका 100 वोल्ट, बट जो कनेक्शन किया गया है, जो पावर सोर्स है, वो कितना डिलीवर कर रहा है 230 वोल्ट। तो अभी मैंने बताया 100 वोल्ट से ज्यादा हो गया, एक्सेस हो गया, तो इसको अगर आप डायरेक्ट बल्ब में सप्लाई दे देंगे तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा बच्चों, है ना, उसका फिलामेंट बर्न हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये लिया बल्ब इस तरीके से, ठीक है, और बल्ब के सीरीज में लगा दिया रेजिस्टेंस, वही यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब कि 230 वोल्ट में से 100 वोल्ट जो है वो तो बल्ब कंज्यूम करेगा, यानी बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होना चाहिए 100 वोल्ट। ठीक है, तो जो एक्सेस वोल्ट जो है 130 वोल्ट वो कहां पर ड्रॉप हो जाएगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। इस तरीके से बल्ब हमारा सेफ रहेगा और वो परफेक्टली वर्क करेगा। ठीक है, तो यहां पर है 230 वोल्ट सप्लाई, 230 वोल्ट, तो बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 100 वोल्ट। हमेशा कैसे कह सकते हैं श्योरिटी से बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट रहेगा, बिकॉज इट इज गिवन दैट द बल्ब वर्क्स परफेक्टली व्हेन आर इज कनेक्टेड। तो वर्क्स, बल्ब वर्क्स परफेक्टली, इट मीन्स दैट इट इज ग्लोइंग विद 100% ब्राइटनेस, और 100% ब्राइटनेस के साथ वो तभी ग्लो करेगा जब उसका जितना डिमांड है आप एग्जैक्टली उतना ही सप्लाई दोगे। तो डिमांड है 100 वोल्ट, सप्लाई कितना इसलिए देंगे 100 वोल्ट। तो आपको पता है दीज टू आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये बल्ब हो गया, ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। सो दिस 230 वोल्ट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस टू, है ना, तो यहाँ 100 वोल्ट हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दिस इज 130 वोल्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस आर। इट इज वेरी सिंपल, देखिए वोल्टेज आपको पता चल गया है कि नहीं। अगर इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो कर रहा है वो अगर हम निकाल लें, है ना, कितना करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर इस ब्रांच में, सपोज करिए यहाँ से आई गया, यहाँ से आई, ये आई, दिस इज अगेन आई, आई, आई। तो इफ अगर करंट का वैल्यू पता चल जाए तो क्या हो सकता है, I इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 130 वोल्ट, दैट इज ओम्स लॉ। बस, तो सारा जो अब कैलकुलेशन हमारा किस लिए रहेगा, करंट निकालने के लिए रहेगा। तो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट। सो इट इज वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली। द बल्ब इज हैविंग पावर 500 वॉट, है ना, पावर कितना है भाई बल्ब का, दैट इज 500 वॉट। अभी बल्ब में सप्लाई कितना है, वोल्टेज की बात करें तो दिस इज 100 वोल्ट। तो जाहिर सी बात है जो करंट होना चाहिए आई वो क्या हो जाएगा P बाय V, क्योंकि आपको पता है P इज इक्वल टू VI, एक और फॉर्मूला होता है। तो दिस इज एक्चुअली 500 बाय 100 एंड दिस विल बिकम 5 एम्पियर। इट इज वेरी सिंपल। नाउ इफ यू ऑब्जर्व द पोटेंशियल डिफरेंस, अभी आई की वैल्यू तो निकल करके आ गई 5। अब क्वेश्चन कैसे हो गया, देखिए ये आर हो गया, यहाँ पर 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 130 वोल्ट है। सो अप्लाई द ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, तो वोल्टेज इज V, I इज 5 एंड R इज, सो R इज बिकम्स 130 डिवाइड बाय 5, दैट इज 26 ओम।
This is 26 ohm. So option C. Next question. Two cities are 150 km apart. Electric power is sent from one city to another city through copper wires. The fall of potential per kilometer is 8 volt and the average resistance per kilometer is 0.5 ohm. The power loss in the wire is. Listen, there are two cities. Let us suppose this is city X and city Y. Power is to be transferred from city X to city Y by using copper wire, and the distance between these two cities are is 150 kilometers. So the length of the copper wire must be 150 kilometers. So what is given, dear students? If you move from point X for by 1 kilometer, then the potential gets decreased by 8 वोल्ट. ये दिया हुआ है ना पोटेंशियल, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो पोटेंशियल में जो कमी आती है वो कितना है, 8 वोल्ट. नाउ इफ यू मूव फर्दर बाय 1 किलोमीटर, देन द पोटेंशियल गेट्स फर्दर डिक्रीज्ड बाय 8 volt. So in this way, every kilometer the potential gets decreased by 8 volt. So in 150 kilometer, that is when you move from city X to Y, actually you have traveled a distance of 150 kilometer. So potential gets decreased by 150 times 8 volt, है ना. तो टोटल यहाँ पर अगर इसको सिटी एक्स ले लें और सिटी वाई ले लें और यहाँ से पावर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भेजना है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज 150 टाइम्स 8 वोल्ट. ठीक है. उसी प्रकार से सिमिलरली रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इज गिवन दैट पर किलोमीटर एवरेज रेजिस्टेंस इज 0.5 ओम. सो हियर द इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द वायर इज हैविंग लेंथ दैट इज 150 किलोमीटर, है ना. वायर का लेंथ है 150 किलोमीटर. सो द टोटल रेजिस्टेंस विल बी 0.5 multiplied by 150, or this is equal to 75 ohm. So we have to find power. So the formula for power is V square by R, and what is V? That is 150 into 8 square divided by R is 75. On further solving, this is 150 times 8, 150 times 8 by 75. 75 वन जा 75 टू जा, ये कितने में आएगा, वॉट. अब आप देखिए ये फिगर जो है ये बहुत 150 टू जा 300, ये ज्यादा आएगा, है ना. मतलब कोई भी ऑप्शन से अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे तो ये मैच नहीं करेगा. व्हाई? बिकॉज द ऑप्शंस आर गिवन इन किलोवाट, है ना. और यहाँ पर जो हम जो निकाल रहे हो किस में आ रहा है, वॉट में. तो कन्वर्ट कर लीजिए इसको किलोवाट में. तो वॉट से किलोवाट में करना है, क्या करेंगे, divided by 1000. So 2 into 8 into 150 times 8 divided by 1000. 1 0 gets cancelled. This is 5 3s are 5 20s are 2 1s are 2 10s are. So 8 into 8 into 3, that is 24 into, sorry, 8 into 8, that is 64 into 3. So this is 64 into 3 divided by 10 kilowatt, and this is 192 by 10, it is equal to 19.2 kilowatt. So the answer will be option B. Next, the power dissipated in the circuit shown in the figure is 30 watt, है ना. So dear students, power dissipated का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला अभी तक हम जो देखते हैं, that is P is equal to V square by R. If there is a single resistance, then the power is V square by R. But if there is more than one resistance, then power will become V square by R equivalent, है ना. So here we have two resistances, है कि नहीं. तो इस इन दोनों का देखिए, these two are actually connected in parallel. So R equivalent का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 R2 by R1 plus R2. ये हो गया फॉर्मूला R इक्विवेलेंट का. नाउ वी हैव द फॉर्मूला फॉर पावर इज दैट इज V स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट. क्लियर है ना. पावर कितना दे दिया, यहाँ मैं यहाँ पर आ रहा हूँ सॉल्व करने. P की जगह लिखेंगे 30, V जो है दिया हुआ है 10, तो दिस इज 10 स्क्वायर, दिस इज 10 स्क्वायर डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट इज 5R 5 प्लस R. तो यहाँ से 10 एक 10 कैंसल, यहाँ पर मिल जाएगा दैट इज 15R
is equal to 10 5 is 50 plus 10R, and that is huh, 15 minus 10R, that is 5R is equal to 50, implies that R is equal to 10. So this is the answer, that is option C. Next, if voltage across a bulb rated 220 volt 100 watt drops by 2.5% to its rated value, the percentage at the rated value by which the power would decrease is. As we know, power is equal to V square over R. The percentage change in voltage is given. So we have the formula percentage change in power is equal to, देखिए क्या होता है ये एक्चुअल में ना, दिस इज रिलेटेड टू द टॉपिक एरर, परसेंटेज एरर विच यू हैव लर्न इन क्लास 11th चैप्टर नंबर 1, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट. वहां पर बच्चों आता था ना यूनिट्स एंड मेजरमेंट में रिलेटिव एरर पढ़ते थे, फिर परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर, इस तरीके से. तो परसेंटेज एरर जब निकालते थे तो क्या होता था, जो पावर में रहता था वो सामने मल्टीप्लिकेशन में आ जाता था, है ना. जैसे कि अब यहाँ पर देखिए पावर में क्या है 2 है, तो यहाँ पर वो सामने मल्टीप्लिकेशन में आएगा और यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा वी, मतलब परसेंटेज एरर इन वी. व्हाट इज दिस डेल्टा पी बाय पी? एक्चुअली इफ यू राइट ओनली डेल्टा पी बाय पी इट इज रिलेटिव चेंज या रिलेटिव एरर, बट यहाँ पर ब्रैकेट में परसेंटेज लिख दिया, इट मीन्स दैट इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ परसेंटेज एरर. डेल्टा वी बाय वी परसेंटेज लिखा, दैट इज परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज और परसेंटेज एरर इन वोल्टेज. तो जो पावर में रहता है वो क्या आ जाता है, सामने आ जाता है. प्लस यहाँ पर क्या होगा, जो दूसरी क्वांटिटी बची है परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस. तो ऑब्जर्व केयरफुली, एक्चुअल में रेजिस्टेंस किसका होता है, बल्ब की बात कर रहा है ये, तो रेजिस्टेंस होगा दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब. आप वोल्टेज को कुछ भी कर लो, फिलामेंट का रेजिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा. तो ये वाला जो क्वांटिटी है ना, ये वाला, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, दिस इज एक्चुअली जीरो. सो फॉर्मूले में हमारे केवल क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन पावर इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज, और वो कितना दिया हुआ है, दैट इज 2.5%. आंसर विल बी 5%. सो दिस इज द आंसर. तो ये वाला आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जब तक आपको परसेंटेज चेंज 5% या उससे कम दिया गया है. Now the power dissipated in 9 ohm resistor in the circuit shown is 36 watt. The potential difference across the 2 ohm resistor is, है ना, potential difference इसके across. Listen, you can use Kirchhoff's law, you can use Ohm's law, but whatever the method you will use, in each method you must know the value of current. Without knowing the value of current, the potential difference cannot be found. So let us suppose यहाँ से जो current गया that is I, बैटरी से current कितना निकला I, यहाँ पर भी I, इस ब्रांच में I1, let us suppose this is I2, और अगेन यहाँ पर क्या हो गया I1 प्लस I2 एंड दैट इज इक्वल टू I. फिर ये I एंड दिस इज I. तो ये I यहाँ से निकला सेल से और वापस सेल में आ गया, तो किरचॉफ जंक्शन रूल तो सेटिस्फाई हो गया. नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 2 ओम रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखिए दिस एक्चुअली V तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको ले लेते हैं हम V1, और ये होगा V1 इज इक्वल टू दिस I मल्टीप्लाइड बाय R, दैट इज 2. ये होगा, है ना, Ohm's law. That is potential difference across the resistor is given by current flowing through the resistor multiplied by the resistance. ठीक है. So अब जो निकालना है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, that is V1 is equal to 2I. This is equation number 1. तो V1 निकालने के लिए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर निकालने के लिए I की वैल्यू पता होना चाहिए. I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है, ठीक है. तो I1 और I2 भी पता होना चाहिए. तो I1 का कैलकुलेशन कर लेते हैं, चलिए देखिए. तो I1 क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो. सो पावर डिसिपेटेड इन 9 ओम रेजिस्टर कितना दिया हुआ है, 36 वाट दिया हुआ है यहाँ पर, है ना. तो पावर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू I स्क्वेयर R. तो यहाँ पर किसके पावर की बात कर रहे हैं, तो पावर डिसिपेटेड इन 9 ओम रेजिस्टर, तो वो पावर लिख दिया हमने. तो I भी कौन सा आएगा, जो करंट 9 ओम से जा रहा है, कितना जा रहा है, दैट इज I1, तो I1 स्क्वायर, और रेजिस्टेंस भी कौन सा आएगा 9. So this is I1 square 9. On solving, you will get I1 is equal to 2 ampere.
तो ये I1 निकल करके आ गया। Now this 9 ohm and 6 ohm are connected in parallel combination. So always remember, in parallel combination, the branch which have lesser resistance, the current will be more, and the branch where resistance is more, in that branch current will be less, क्योंकि रेजिस्ट वोल्टेज सेम है दोनों में, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में है, तो जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट उतना ही क्या होगा, कम होगा। इट मीन्स दैट द करंट एंड रेजिस्टेंस आर हैविंग इनवर्स रिलेशन विद ईच अदर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर two resistors connected in parallel, I is having inverse relation with R। ठीक है, इनवर्स रिलेशन। तो यहां पर बस इसी को यूज करते अब हम आगे लिखने जा रहे हैं। जैसे हमको I2 निकालना है, यहाँ पर दिस इज I2, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे I2 बाय I1 इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए प्रोपोर्शनलिटी मेथड को लेक्चर 1 में भी मैंने बताया है, यहाँ पर भी हम डील करते हैं। I ऊपर है, R नीचे है ना, इस चीज का ध्यान रखें, इनवर्स रिलेशन है। सो I2 इज द करंट करस्पॉन्डिंग टू 6 ओम रेजिस्टेंस। तो I2 ऊपर है ना, तो 6 कहां पर आएगा, नीचे आएगा, इनवर्स रिलेशन। I1 is the current corresponding to या flowing through 9 ओम रेजिस्टेंस, तो I1 नीचे है तो 9 ऊपर आएगा। तो यहां से दोस्तों क्या हो जाएगा, I2 दिस इज I2 इज इक्वल टू 9/6 इज 3/2 मल्टीप्लाइड बाय I1, और I1 का वैल्यू कितना निकाला हमने, 2 एम्पियर। So this 2 gets cancelled and I2 is equal to 3 ampere. So finally we have I is equal to I1 plus I2, that is I is equal to 5 ampere. और जैसे ही 5 एम्पियर मिल गया, जो V1 है वो कितना आ जाएगा, देखिए V1 is equal to I into 2, that is 5 into 2, and this is equal to 10 volt. So this is in physics, this is the way how we approach the question. First write the expression which you need to find, है ना, आपको जो पूछ रहा है उसको आप पहले लिख लीजिए, that is V1 is equal to 2I। अब आप इसमें देख लो बच्चों कि आपको इसमें क्या नहीं पता, I नहीं पता था, तो definitely there must be some hint in the question, that's why we say that every problem has solution. So next question, a current of 3 ampere flows through 2 ohm resistor shown in the circuit, the power dissipated in the 5 ohm resistor. So we have to find the power dissipated in 5 ohm resistor. Again पावर वी हैव टू फॉर्मूला, है ना, एक तो वी स्क्वायर बाई आर होता है और एक आई स्क्वायर आर होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इस ब्रांच में करंट की, मान लीजिए इस ब्रांच में जो करंट आ रहा है उसको हमने ले लिया, दैट इज सपोज आई टू ले लिया, ठीक है, आई टू। सो द पावर डिसिपेटेड इन 5 ओम रजिस्टर, पावर डिसिपेटेड इन 5 ओम रजिस्टर P, ये कितना हो जाएगा, I2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R, दैट इज 5, इक्वेशन नंबर 1। अब ये निकालना है, इसको हमने लिख दिया। अब इसको निकालने के लिए क्या पता होना जरूरी है, I2 पता होना जरूरी है। सो अब पूरा कैलकुलेशन हम I2 के लिए करेंगे। अब गिवन क्या है ये भी देख लीजिए, 3 एम्पियर जो है वो कहां से फ्लो कर रहा है, 3 एम्पियर, अगर इसको I1 लिया तो दैट इज 3 एम्पियर, दिस इज 3 एम्पियर जो कि 2 ओम से फ्लो कर रहा है ना। तो ये तो चीजें क्लियर हो गई। अब ऑब्जर्व केयरफुली, अगर मैं केवल देखूं दिस रेजिस्टेंस 2 ओम, दिस 4 ओम एंड दिस कंबाइंड 5 + 1 दैट इज 6 ओम, दीज 3 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 3 कौन सा 3 हो गया है समझिएगा, ऊपर आ रहा है दैट इज 2 ओम, है ना, नीचे आया दैट इज 4 ओम, दिस इज 2, दिस इज 4। और अगर आप इन दोनों को देखें 1 ओम और 5 ओम, तो एक्चुअली 1 और 5 सीरीज में है, तो ये हो जाएगा दैट इज 6 ओम। दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो चाहे आप किसी दो को लें, जैसे मैं 2 ओम और 6 ओम की बात करूं, तो दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो अगेन जस्ट कुछ देर पहले हमने देखा था ना, करंट का जो रेशो रहता है वो इनवर्स में रेशो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशो के बराबर हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली हियर 2 ohm and 6 ohm are connected in parallel, so the
if you take the ratio of the current, that is I1 by I2, I1 by I2, ध्यान दें, so we are having inverse relation in between these, है ना, ये देखिए I is inversely proportional to R, तो ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर I1 is the current flowing through 2 ohm resistor, तो I1 यहाँ ऊपर है तो यहाँ 2 ohm नीचे आएगा, इनवर्स रिलेशन। I2 is the current flowing through 6 ohm resistor, देखिए यहाँ पर करंट कितना है, that is I2, और यहाँ पर कितना लिया, that is I1, तो I2 is the current flowing through 6 ohm resistor, isn't it? So I2 यहाँ पर नीचे है ना, तो 6 यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर आएगा, तो दिस इज एक्चुअली 3, सो I1 तो हमको पता है, तो I2 क्या आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू I1 बाय 3, दैट इज 3 बाय 3 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। सो ये I2 भी हमने निकाल लिया, I1 ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 3 एम्पियर। सो जो हमको निकालना था क्या, पावर, हाँ, तो पावर क्या आ जाएगा, फ्रॉम एक्सप्रेशन 1, I2 स्क्वायर इंटू 5, I2 इज 1, so this is actually 1 square multiplied by 5, and that is 5 watt, option D. So in this way we approach, first write the expression of what is asked in the question and then approach for the required value. So that's all for this question. Next question. In the circuit shown, the current through the 4 ohm resistor is 1 ampere when the point P and M are connected to a DC voltage source. This is point P and M. These are connected to a DC voltage source. The potential difference between the points M and N. Again, the same pattern question, we have to find the potential difference between M and N. So let us suppose कि these are connected in this way. So the current will flow like this from here to in this way, from N to M. So if I write that is ये current flow हो रहा है और इस branch में जो current है, let us suppose this is I2, मान लिया हमने, ठीक है। So VMN, that is potential difference between M and N, is given by again Ohm's law. The current flowing through the resistor is I2 and the resistance is 1 ohm. So this is actually I2 into resistance, and this is given by I2 multiplied by 1, and this is I2. So this is potential difference between V M and let us take it as expression 1. Okay, same expression. Vmn is the potential difference across the ends of the resistance. ठीक है, is equal to I2 is the current flowing through the resistance and R is the value of the resistance. So ये Ohm's law apply हमने कर लिया, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 होने के कारण Vmn न्यूमेरिकली I2 के बराबर आ गया। तो हमको निकालना है केवल I2, जैसा ही I2 हम निकाल लेंगे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दिया क्या है क्वेश्चन में, देखिए इस ब्रांच में जो करंट आ रहा है, इस ब्रांच में करंट कितना है, दैट इज 1 एम्पियर, isn't it? The current flowing through, देखो यहाँ लिया, the current through the 4 ohm resistance is 1 ampere. Now I am going to redraw the circuit. Observe carefully. सबसे पहले दोस्तों क्या आया है, देखो this is 4 ohm, ठीक है, उसके नीचे क्या है, this is 3 ohm, this is 4 ohm 3 ohm, उसके बाद ये पावर सप्लाई से कनेक्टेड है। Now listen, actually these two are connected in parallel, having the same value, each resistance having same value, that is 0.5. तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, 0.5/2। आपको पता है पैरेलल में अगर R रेजिस्टेंस N रेजिस्टर्स हैं हैविंग सेम रेजिस्टेंस R, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, R/N। अगर ये 0.5 के 10 रेजिस्टर्स होते पैरेलल में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता 0.5/10। अभी है 2, तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा इन दोनों का, 0.5/2, दैट इज 0.25 ओम। इस तरफ क्या है, दैट इज 1 ओम, ये क्या हो गया 1 ओम। ये सारा कैलकुलेशंस हम किसके लिए कर रहे हैं, I2 निकालने के, है ना, और फिर इसको जोड़ दिया यहाँ से, और इस तरफ क्या है आपका पॉइंट, दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट M। डोंट बॉदर अबाउट दिस पॉइंट N, ठीक है, वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हालांकि आप करें लिखेंगे तो यहाँ पर N आ जाएगा, बट यहाँ पर हमको N की जरूरत नहीं, हमको केवल I2 निकालना है कुछ भी करके, है ना, बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। और Vmn की वैल्यू ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, N को कंसिडरेशन में ले लिए। अब देखिए इस ब्रांच में करंट निकालना है I2,
है ना। इस ब्रांच में करंट पता है कितना है, दैट इज 1 एम्पियर। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 0.25 और 1 का, तो दिस टू आर कनेक्टेड इन सीरीज, दिस टू आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अब मैं फिर से एक सर्किट बना रहा हूं, देखिए ये हुआ 4 ओम, ठीक है, रिलैक्स कूल माइंड से देखिए, ये नीचे आ रहा है 3 ओम, दिस इज 3 ओम, और एग्जैक्ट जैसा ये है वैसा ही बना रहा हूँ ताकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, बाद में फिर हम इसको बताएंगे। दिस इज P, नीचे आ जाएगा दैट इज 1.25, 1.25 ओम। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, यहाँ पर करंट दिया हुआ है, यहाँ पर करंट है 1 एम्पियर, और यहाँ पर I2 निकालना है। दिस इज एक्चुअली, लेट अस सपोज दिस इज I1, यहाँ पर जो है इसको I1 ही लिया है हमने क्या, हाँ इसको ले लीजिए, दिस इज I1 और ये क्या हो गया I2। क्लियर, चलिए अब देखिए ये 4 ओम है, 1 एम्पियर, दिस इज I2 1.25, दीज टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना। इस रजिस्टर का एक एंड P से जुड़ा है, दूसरा एंड M से जुड़ा। 4 ओम का भी रजिस्टर एक एंड लेफ्ट एंड P से जुड़ा और दूसरा एंड M से जुड़ा। ऐसे ही देखते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो दिस 4 ओम एंड 1.25 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और रेजिस्टेंस है एक जगह 1 है और एक जगह I2, ठीक है। तो अगेन सेम फॉर्मूला जो अभी तक यूज करते आए हैं, I2 बाय I1, दिस इज एक्चुअली I1, तो I2 बाय I1। अब इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस का इनवर्स रेशो आएगा। सो I2 इज द करंट करस्पॉन्डिंग टू 1.25, तो ये अगर I2 ऊपर है तो 1.25 नीचे। वैसे यहाँ पर I1 कितना है, 1 एम्पियर किस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर, सो I1 नीचे है तो 4 ऊपर। तो बच्चों ये हो जाएगा 400 बाई 125, एंड दैट इज 125 375, रिमेनिंग इज 25, जीरो लगेगा, दैट इज 2, है ना। तो I2 बाय I1 इज इक्वल टू 3.2, implies that I2 is equal to 3.2 into I1, and I1 is 1 ampere, so this is actually 3.2 ampere। और यहाँ पर हम ऑलरेडी देखिए क्या निकाल चुके हैं, Vmn is equal to, sorry, I2 numerically। तो फाइनली वी हैव Vmn is equal to I2 into 1 ओम, है ना, क्योंकि 1 ओम है और कितना आ जाएगा ये 3.2 वोल्ट। सो द आंसर विल बी 3.2 वोल्ट, ऑप्शन डी। इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल पावर डिसिपेटेड इन वॉट इन द सर्किट शोन। अगेन आपको पता है टोटल पावर की बात करें तो दैट इज वी स्क्वायर बाय आर इक्वलेंट, ऐसा करते हैं तो आर इक्वलेंट निकालना है हमको यहाँ पर। तो पहले 6 और 3 का निकाल लेते हैं, है ना, ये दोनों पैरेलल में है, तो जब इन दोनों का निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 3 बाय 6 प्लस 3, दैट इज 2 ओम। तो इन दोनों का आ जाएगा 2 ओम, और ये जो है 4 ओम वो किस में है आपके, इसके साथ सीरीज में, मतलब ये ऐसा, ये 2 ओम आ गया 6 और 3 का। फिर यहाँ पर ऑलरेडी ये कितना है 4 ओम है, और ये क्या है, दिस इज 18 वोल्ट, और ये क्या है इस तरीके से ऐसा दे दिया है, ठीक है। सो पावर इज वी स्क्वायर बाई आर इक्वलेंट। सो 4 और 2 का जो है दैट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सो कितना हो जाएगा आर इक्वलेंट 6। तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर की जगह 18 वोल्ट, मतलब 18 टाइम्स 18, और आर इक्वलेंट इज 4 प्लस 2 इज 6, तो 6 1 जा 6 3 जा, so this is 54 watt, option B। Next, power dissipated across the 8 ohm resistor in the circuit shown here is 2 watt, the power dissipated in watt units across the 3 ohm resistor। ये सारे क्वेश्चंस अगर आप पेन कॉपी लेकर के बैठ रहे हैं और प्रैक्टिस करते चल रहे हैं तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। सो 8 ओम के अक्रॉस जो पावर दी है दैट इज एक्चुअली 2 watt। सो लेट अस सपोज यहाँ पर करंट I1 है और इस ब्रांच में करंट I2 आया, यही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है।
तो पावर निकालना है अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। तो पावर डिसिपेटेड अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर, पावर डिसिपेटेड अक्रॉस 3 ohm resistor. So this will be actually I2 square into R, that is 3. That is 3 I2 square, expression number 1. I square R होता है, I2 निकाल लेंगे, और R क्या है, अक्रॉस 3 ohm चाहिए तो R को 3 रखा हमने, ठीक है। सो अब इस पावर को निकालने के लिए I2 की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। तो पहले वही है, फिर I2 निकालने के लिए I1 निकाल लेते हैं, फिर इनवर्स रेशो से निकाल लेंगे। I1 क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो तो I1 का सिंपल सा फॉर्मूला है, इसके अक्रॉस पावर कितना डिसिपेट हो रहा है, 2 वॉट, तो मैं उसको यही निकाल सकता हूँ। देखिए इसके अक्रॉस पावर कितना डिसिपेट हो रहा है, 2 वॉट, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर, तो इससे करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1 स्क्वायर, और ये कितना है 8। तो यहाँ से जो I1 है दैट इज एक्चुअली विल बिकम 1/2 एम्पियर। आप सॉल्व करके देख लीजिए, ये आ जाएगा 1/2 एम्पियर। निकालना क्या है हमको, I2 निकालना है। तो इस सर्किट को और रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, देखिए ये जो 3 और 1 दिख रहा है ये किस में है, आपके सीरीज में, है ना। तो इन दोनों की जगह पर एक रेजिस्टेंस लिखिए, और वो एक रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 4 ओम। नीचे ऑलरेडी क्या है आपके पास, दैट इज 8 ohm, and these two are connected in parallel. So this is 8 ohm and this is 2 ohm. Sorry, this is 4 ohm. यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I2, और यहाँ पर जो करंट है दैट इज I1। तो उस सर्किट के लिए, ये वाला जो सर्किट है इसके लिए अगेन आप लगाना चाहें तो I1/I2 लगा सकते हैं, या I2/I1 लगा सकते हैं। तो देखिए I2/I1 अगर मैं लगाता हूँ तो I2 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ohm रजिस्टर, इनवर्स रिलेशन होता है तो 4 यहाँ पर क्या आएगा, नीचे आएगा, और I1 यहाँ नीचे है तो 8 ऊपर आएगा। तो दिस इज एक्चुअली 2। ऑन फर्दर सॉल्विंग I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए इम्प्लाइज दैट I2 इज इक्वल टू 2 इंटू I1 कितना निकाला, 1/2, तो 2 इंटू 1/2 दैट इज 1 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू आ गई दोस्तों, दैट इज 1 एम्पियर। यहां पर रख दीजिए, पावर निकल जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर, एंड दैट इज 3 वॉट। दिस इज द आंसर, ऑप्शन ए। Next. So the 5 ampere fuse wire can withstand a maximum power of 1 watt in the circuit, the resistance of the fuse. 5 ampere fuse wire, it means that भाई मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है, 5 एम्पियर। उससे कम होगा तो इट्स ओके, बट उससे ज्यादा होगा तो फ्यूज वायर विल गेट मेल्ट एंड द सर्किट विल ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ पर करंट दे दिया है दैट इज 5 एम्पियर, पावर इज 1 watt, we need to find resistance. Same, power is equal to I square R, है ना। So R will be given by that is P over I square, और P that is 1 by I square, that is 5 square, that is 1/25, and 1/25 is 0.04. So this is the answer, 0.04. Next. When three identical bulbs of 60 watt 200 volt rating are connected in series to a 200 volt supply, the power drawn by them will be. Again, there is more than one bulb, so we have the formula of combined your equivalent power or total power. So for series combination, we have the formula that is 1 by PS is equal to 1 by P1 plus 1 by P2 plus 1 by P3. यहाँ पर तीनों बल्ब्स आइडेंटिकल हैं तो 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60, तो यहाँ से PS आ जाएगा दोस्तों, दैट इज 60/3 is equal to 20 watt. This is the answer, option D. Put the value, get the answer type questions. Next, in India the electricity is supplied for domestic use at 220 volt. It is supplied at 110 volt in USA. If the resistance of a 60 watt bulb for use in India is R, इंडिया के बल्ब का रेजिस्टेंस R है, तो फिर यूएसए में जो बल्ब है जिसका पावर रेटिंग 60 वॉट है उसका रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो देखिए वोल्टेज अलग अलग है ना। तो पावर की बात करें तो पावर होता है दैट इज V²/R, ठीक है। So method of proportionality, again I am saying that in lecture 1 we have done various numericals based on this method of proportionality. तो उसका स्टेप्स क्या होते थे, प्रोसीजर क्या होता था, देखिए
सबसे पहले जिस क्वांटिटी के बारे में बात चल रहा है, दैट इज रेजिस्टेंस के बारे में बात चल रहा है, तो फर्स्ट द स्टेप वन इज वी राइट इट्स फॉर्मूला. सो आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी. स्टेप वन कंप्लीट. नाउ इन दिस फॉर्मूला we choose those quantities which remains constant and those quantities which are going to change. तो यहाँ पर देखिए पावर दोनों ही केसेस में, मतलब वो जो बल्ब है जो यूएसए में यूज किया जा रहा है, जो इंडिया में यूज किया जा रहा है, दोनों का पावर रेटिंग कैसा है? सेम है. पावर रेटिंग सेम है. तो चेंज क्या हो रहा है? वोल्टेज, है ना. तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर. ये स्टेप नंबर 2 हो गया. और फिर फाइनल स्टेप हम लिखते थे कि जो निकालना है हमको, जैसे कि हमको रेजिस्टेंस निकालना है किस बल्ब का? जो बल्ब यूएसए में यूज हो रहा है. तो आर डैश इज इक्वल टू, और दिया किस बल्ब का है? उस बल्ब का दिया जो इंडिया में यूज हो रहा है, दैट इज इक्वल टू आर. तो ये होता है तरीका. न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, मतलब जहां का निकालना है वो लिखा, और फिर यहाँ पर क्या लिखा? जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. जैसे यहाँ पर इंडिया के लिए जो बल्ब है उसका गिवन है आर, और यहाँ पर अब लगा देना है आपको ब्रैकेट. और ये मेथड ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का लास्ट और फाइनल स्टेप है, जो कि थर्ड स्टेप होता है. मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसको अगर डाउट हो तो लेक्चर 1 में हम इसको इस पर बेस्ड, इसी मेथड ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पर बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस किए हैं, वहां से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको. बट आप यहाँ पर भी ध्यान से देखें, क्लियर हो जाएगा. सो दिस इज न्यू रेजिस्टेंस, दिस इज ओल्ड. ओल्ड इट मीन्स दैट ये इंडिया में रेजिस्टेंस हो गया बल्ब का, और ये हो गया यूएसए में. सेम पावर का आप अगर बल्ब लेते हैं, ठीक है, सेम पावर का यूएसए में और इंडिया में, तो वहां पर जो वोल्टेज सप्लाई है वो अलग अलग ऐसा दिया ना. यहाँ पर 220 वोल्ट और वहां पर 110 वोल्ट है. तो डेफिनेटली जो बल्ब का फिलामेंट है उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो दोनों ही जगह पर अलग अलग होगा बच्चों. तो वो हमको यहाँ पर निकालना है. तो इंडिया के लिए आर दे दिया है, ये यूएसए के लिए. तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है? मल्टीप्लीकेशन फैक्टर लिखना है. देखिए जो क्वांटिटी यहाँ पर आती है ना, उसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर लिखते हैं. ठीक है. तो निकाल कहाँ के लिए रहे हैं? यूएसए के लिए. दिया कहाँ का है? इंडिया का. तो इंडिया से यूएसए, तो इंडिया में वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट. यूएसए में वोल्टेज कितना है? 110 वोल्ट. तो 110 इज हाफ ऑफ 220. तो 220 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 110 मिलेगा? 1/2, है ना. तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या हो गया? 1/2. तो ये आ जाएगा 1/2. अगर आप ये मेथड ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज करना सीख गए तो नीट के बहुत से क्वेश्चंस आप बहुत ही जल्दी डील कर सकेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही डिजाइन करते हैं कि आप इस प्रोपोर्शनलिटी मेथड से जाएं एंड विद इन 20 to 25 सेकंड द क्वेश्चन गेट सॉल्व. और अगर आप उसको कन्वेंशनली जाएंगे तो थोड़ा लंबा पड़ता है और टाइम कंज्यूम करेगा, और अगर वो टाइम कंज्यूम किया तो दूसरे क्वेश्चन के समय को, टाइम को खाएगा वो. समझ रहे हैं? सो द आंसर इज R/4. देखिए प्रोपोर्शनलिटी के हेल्प से हमने किया. तो मैं आपको बता रहा था इसलिए आपको इतना लेंदी लग गया होगा, बट अदरवाइज आप इसको वर्बली सॉल्व कर सकते थे. R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी है, पी सेम और v है तो स्क्वायर आ जाएगा, है ना. अच्छा, स्क्वायर क्यों आया ये भी समझिएगा. v का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिखा 220 से 110 हो रहा है, बट इसके बाद क्या है? स्क्वायर है ना, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है? स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन. So the fuse wire is a wire of high resistance and low melting point. Option B. Next, 220 volt to 220 volt 100 watt bulbs are connected first in series and then in parallel. Each time the combination is connected to a 220 volt AC supply line, the power drawn by the combination in each case respectively will be. Again, first they are connected in series. So when they are connected in series, the formula is actually P1 into P2 by P1 plus P2. तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 100 watt 100, तो 100 into 100 by 100 plus 100 that is 200. कैंसल. तो ये कितना आ जाएगा? 50 watt. और पैरेलल के लिए आपको पता है सीधा क्या हो जाता है? P1 plus P2 that is 100 plus 100 is 200 watt. So option is 50 watt 200 watt. Option D. Next, two bulbs 25 watt to 20 volt and 100 watt are given which has higher resistance. So since P is equal to V square by R implies that R is equal to V square by P. In both the cases voltage is same, है ना. voltage कैसा है? दोनों में सेम है, तो R क्या आ जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P. मतलब द बल्ब विच हैज ग्रेटर पावर मस्ट हैव लेसर रेजिस्टेंस. हमको निकालना है क्या? हायर रेजिस्टेंस. हाँ, तो जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. तो पावर कम किसका है? 25 वाट का, तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा बिकॉज दीज आर हैविंग इनवर्स रिलेशन. नेक्स्ट,
A heating coil is labeled 100 watt 220 volt. The coil is cut into two equal halves and the two pieces are joined in parallel to the same source. The energy now liberated per second is, so energy liberated per second is nothing but power, है ना, energy per second is power. So listen, पहले केस में कितना दिया है, कुछ भी दिया है कि कितना एनर्जी लिबरेट हो रहा है, दैट इज 100 वॉट, 100 जूल पर सेकंड ना, कुछ 100 वॉट इज नथिंग बट 100 जूल पर सेकंड. और दूसरे केस में क्या है, तो देखिए मैं इसको कन्वेंशनल मेथड से इसको आपको बता देता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी वाले से तो अभी हम बहुत कर ही रहे हैं. सो रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग कॉइल, ये पहले कितना आ जाएगा, तो दिस इज केस 1, that is resistance of heating coil. आप में से कोई इसे प्रोपोर्शनलिटी मेथड से ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं, अभी तक हम जैसा करते आए हैं. सो ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज अभी निकाला था P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय P. सो V इज गिवन एज 220 मल्टीप्लाइड बाय 220 और पावर है दैट इज 100, सो गेट्स कैंसल्ड एंड दिस इज एक्चुअली 484 ओम. दूसरा क्या है, एज वी नो सिंस R is equal to rho L by A implies that R is directly proportional to L. क्योंकि जब आपने वायर को कट कर दिया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम होने वाला है ना. जैसे ये वायर है, अगर मैंने इसको यहाँ से कट कर भी दिया, यहाँ से कट कर भी दिया, तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो तो सेम ही रहेगा, रेजिस्टिविटी भी सेम रहेगी, केवल क्या चेंज होगा, लेंथ चेंज होगा. और ये रिलेशन का मतलब क्या है बच्चों, अगर लेंथ डबल होता है तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा. अब कट इंटू टू इक्वल हाफ से बोल रहा है तो लेंथ क्या हो गया, एक एक वायर का आधा हो गया, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा. इट मीन्स दैट जो नया रेजिस्टेंस आ रहा है या आर कट वायर का आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 484 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, लेंथ हाफ होगा तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा. सो दिस इज एक्चुअली 242 ओम. ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, 242 ओम 242 ओम. अब मैं यहां पर फिर से अलग से कर रहा हूं, है ना. अब ये जो कट पोर्शन है इसको किस में कनेक्ट किया गया है, दैट इज दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल और सेम सोर्स. सेम सोर्स मतलब कौन सा सोर्स हो गया, दैट इज 220 वोल्ट. ये सेम सोर्स, दिस इज 242 ओम एंड दिस इज 242 ओम. ठीक है, तो यहां पर जो अब पावर कंज्यूम होगा, कंजम्पशन, वो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वी स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट. सो वी इज हियर, कितना है वी, 220, तो 220 इंटू 220. आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सेम रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो 240 डिवाइडेड बाय 2. अभी देखा था यहाँ पर 5 होते हैं अगर पैरेलल में, 242 242 242, तो क्या कर देते, 242 डिवाइडेड बाय 5, तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर्स. ठीक है, ये आ जाएगा. तो यहाँ पर 2 है तो 242 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 121, तो 11 11 जा 11 20 जा 11 1 जा 11 20 जा. सो पावर इज दैट इज 400 वॉट. और इसी 400 वॉट को क्या लिख सकते हैं, एनर्जी लिबरेटेड पर सेकंड, मतलब 400 जूल पर सेकंड. तो एक सेकंड में कितना एनर्जी लिबरेट हो रहा है, 400 जूल. सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन डी. नेक्स्ट, the three resistances each of 4 ohm are connected to form a triangle. The resistance between any two terminals is, देखिए 3 रेजिस्टेंस है, ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं और ये ऐसा, तीनों का रेजिस्टेंस दिस इज 4 4 4. Let us suppose this is point A and this is point B. So we have to find the resistance between any two terminals, है ना. तो ये दो टर्मिनल हमने एज्यूम कर लिया, तो इनके बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. सो लिसन, ए से चालू करेंगे. अब देखिए कुछ बच्चों का ऐसा रहता है, जैसे 10th में भी बच्चे पूछते हैं, 12th वाले भी वन पूछ लेते हैं कई बार, कि ये तो तीनों सर सीरीज में दिख रहा है बोले एक साथ, ऐसा नहीं है. यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी इधर फ्रॉम ईच एंड. आपको दो टर्मिनल, तो दो टर्मिनल कौन से हैं, या तो ए है या तो बी से. तो आप या तो अपना जो जर्नी है कहाँ से चालू करेंगे, इधर स्टार्ट फ्रॉम ए और स्टार्ट फ्रॉम बी. तो चलो मैंने स्टार्ट किया ए से, तो जैसे ही ए पर हम खड़े होते हैं, सो वी हैव टू डिफरेंट पाथ्स. तो ये दोनों सीरीज में हो ही नहीं सकते, है ना, या तो इधर जा सकते हैं या तो इधर जा सकते हैं. हाँ भाई, उसके बाद क्या है, जैसे ही आप इधर गए, इस पॉइंट पर एक ही रास्ता है,
ये 4 ओम वाला, तो ये 4 और ये 4 एक ही रास्ते पर हैं, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये 4 4 मिलकर के क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स 8 ओम। और ये नीचे वाला फिर क्या है आपके पास, दिस इज एक्चुअली 4 ओम, और ये है ए और ये है बी। नाउ अगेन ए पर खड़े हो रहे हैं तो दो रास्ते हैं, बट अब ये दोनों किस में हो गए, आपके पैरेलल में हो गए, है ना, क्योंकि दोनों के जो दो एंड्स हैं कॉमन पॉइंट्स से जुड़े हुए हैं। 8 ओम का एक एंड ए से जुड़ा है, दूसरा एंड बी से। 4 ओम का भी एक एंड ए से जुड़ा है, दूसरा एंड बी से जुड़ा है, तो कॉमन पॉइंट्स से जुड़े हैं। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 बाय या 8 into 4 by 8 plus 4. So R equivalent is equal to 8 into 4 by 8 plus 4, that is 8 into 4 by 12. So 4 ones are 4 threes are, and this is equal to 8 by 3 ohm. तो बच्चों यहाँ पर एक चीज मैं आपको डायरेक्ट मेथड और एक बता देता हूँ। जब कभी भी इस तरीके का दो आपको रेजिस्टेंस दिखता है ना, जैसे ये दिख रहा है, तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाता है, देखिए ये भी आपके कई जगह वर्बली क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगा, आर बिगर बाय एन प्लस 1, दिस इज ट्रिक। सो व्हाट इज आर बिगर, दोनों में बड़ा कौन है, 8। कितना टाइम्स है वो छोटे वाले का, 2 टाइम्स, तो एन की जगह 2 प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 8 बाय 3। सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, a current of 2 ampere passing through a conductor produces 80 joule of heat in 10 seconds. The resistance of the conductor in ohm is, सब चीज दे दिया है, H is equal to I square R T, the resistance है ना, तो ये जो T है टाइम है स्मॉल t, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा H by I square R, H that is 100, I is 2 square and time is 10 seconds. Cancel, and this is 2 square 4, 4 2s are 8, so this is 2 ohm. So option B. Next, the terminal voltage of the battery whose EMF is 10 volt and internal resistance 1 ohm when connected to an external resistor of 4 ohm as shown in the figure is. So need to 2024 we have to find terminal voltage, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए टर्मिनल वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज एक्चुअली V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर। तो यहाँ पर R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो देखिए E पता हो गया 10 आ जाएगा और R की जगह क्या आएगा 1। सो दिस इज द एक्सप्रेशन एक्चुअली जो हमको निकालना है। अगेन फिर से यहाँ पर I अननोन है, तो I के लिए अब कैलकुलेशंस चालू करेंगे। तो I निकालना बहुत ईजी है दोस्तों। देखिए कभी भी I निकालने के लिए इस सर्किट को पकड़ लीजिए आप, इस लूप को, भाई करंट यहाँ से प्लस से माइनस ऐसे फ्लो करेगा, तो इस लूप को पकड़ लीजिए। इस लूप में I निकालने के लिए देखिए ऊपर लिखेंगे नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ कितना आ जाएगा 10 वोल्ट, तो दिस इज 10। और नेट रेजिस्टेंस, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, दिस इज 4, 4 प्लस 1 5, तो दिस इज 5। तो I कितना आ गया 2 एम्पियर, है ना, I कितना निकल करके आ गया 2 एम्पियर। और इक्वेशन 1 से अगर हम यहाँ पर V निकालना चाहें तो आ जाएगा E माइनस आई आर, दैट इज 10 minus 2 into R is 1 and this is equal to 8 volt. So option B. Next, in 2019, 6 similar bulbs are connected as shown in the figure with a DC source of EMF E and 0 internal resistance. ठीक है, आइडेंटिकल बल्ब्स हैं तो पावर रेटिंग सबका सेम होगा और सबका जो रेजिस्टेंस है वो भी सेम होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस 0, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो 0 दिया वो किसका दिया, डीसी सोर्स का दिया है ना, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 दिया है, ठीक। सो द रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब्स, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब्स व्हेन, अब पार्ट वन इन द इट मींस रेशियो निकालना ना दो चीजों का, तो पहला चीज दिया व्हेन ऑल आर ग्लोइंग, सारे के सारे ग्लो कर रहे हैं, मतलब सब में कनेक्शन है, and 2 in the situation when 2 from section A, this is actually section A, यहां से यहां तक जो है ये क्या है सेक्शन A है, और ये जो है आपका ये वाला कॉलम जो आप देख पा रहे हैं दिस इज एक्चुअली सेक्शन B, ठीक है। तो इन द सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन A, सेक्शन A से 2
और 1 फ्रॉम सेक्शन बी आर ग्लोइंग। तो ये पावर रेशो हमको निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड द पावर इन बोथ द केसेस। तो पहले वाले के लिए डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, बल्ब है, आइडेंटिकल्स है। ऑब्जर्व केयरफुली। एक्चुअली इस कॉलम में जितने बल्ब हैं, बल्ब 1 2 3, एक्चुअली दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर, है कि नहीं? दोनों का देखिए, जो एक टर्मिनल है वो किसी एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा है। लेट अस सपोज दिस कॉमन पॉइंट इज दिस कॉमन पॉइंट, वेट, हाँ, दिस कॉमन पॉइंट इज एंड दिस कॉमन पॉइंट एंड दिस कॉमन पॉइंट, ये ठीक है। अब मैं इसको नाम लिख देता हूं। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट J, this is K and this is L. Observe carefully, dear students. The left ends of the bulb of these three bulbs जो कॉलम A में हैं are connected to point common point J, and the right end of these three bulbs are connected to common point K. So these three are connected in parallel. This is the way how we detect the parallel combination and series combination. Similarly, observe carefully column B bulbs, है ना? These left end of these bulbs are connected in common point K, and the right ends are connected with common point L. So these three are connected in parallel. So what is given in case number 1? So it is given that all bulbs are glowing. It means that all bulbs are getting power. So instead of bulb, I am writing the resistances, है ना? सो देखिए, ये पहला बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया, ये दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया, और ये तीसरे बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, और ये तीनों के तीनों कैसे हैं? पैरेलल में कनेक्शन है। तो क्या मैं इनको ऐसे बना सकता हूं क्या? देखिए, ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा। दिस इज फर्स्ट बल्ब, दिस इज सेकंड बल्ब एंड दिस इज थर्ड बल्ब। यहाँ पर बल्ब ना बना करके हमने क्या बना दिया? रेजिस्टेंस बना दिया। दिस इज पॉइंट J एंड दिस इज पॉइंट K। उसके बाद से यहां से फिर तीन, पहला बल्ब, दूसरा, और फिर ये तीसरा। लेट अस सपोज ये आइडेंटिकल है, तो सबका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R R R, एंड दिस पॉइंट इज L। और ये फिर कनेक्टेड है किससे? दिस इज कनेक्टेड विद EMF। इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? 0। नाउ इस केस 1 में वी हैव टू फाइंड द पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? इफ देयर इज मोर देन वन रेजिस्टेंस, देन द पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट देखना है हमको। तो केस 1 में ही अभी हम हैं, है ना? केस 1 को ही सॉल्व कर रहा हूं मैं अभी। तो देखिए, इसका जो नेक्स्ट फिगर होगा वो कैसे हो जाएगा? R R R, है ना? पैरेलल कनेक्शन है, तो एक रेजिस्टेंस आएगा इन तीनों का इक्विवेलेंट, पैरेलल हो गए ना तीनों, तो R/3। ऐसे ही करते थे, R बाय नंबर ऑफ रजिस्टर्स। तो दिस इज पॉइंट J एंड दिस इज पॉइंट K, और फिर वैसे इस तरफ का क्या आ जाएगा? दैट इज अगेन R/3, और ये कनेक्टेड है E से। फिर इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? R/3 दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो दिस विल बिकम दैट इज 2R/3। यहां से आ जाएगा दैट इज E, है ना? ये आ जाएगा E, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन। दिस इज E। तो पावर इन केस 1 विल बी गिवन बाय, आई एम राइटिंग हियर, पावर इन केस 1 दैट इज V स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट। दिस इज द फॉर्मूला। सो V की जगह यहाँ पर E है, और R इक्विवेलेंट जो आ रहा है दैट इज 2R/3। सो दैट इज 3E स्क्वायर बाय 2R, इक्वेशन नंबर 1। रिमेंबर, है ना? ये आ गया पावर फर्स्ट केस में। अब सेकंड केस में जो क्वेश्चन में कमेंट किया है वो क्या सेकंड केस में कमेंट किया है? इन द सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन ए, मतलब सेक्शन ए से कोई भी दो बल्ब को सप्लाई दिया जा रहा है, एंड 1 फ्रॉम सेक्शन बी। तो कनेक्शन सपोज करिए इन दोनों अगर ग्लो कर रहे हैं, तो इस पर कनेक्शन नहीं है, तो इस पर करंट नहीं आ रहा, तो इसके रेजिस्टेंस को कंसिडरेशन में नहीं लेंगे।
वैसे ही सेक्शन बी से केवल एक बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, तो आप कोई भी एक को ले सकते हैं, लेकिन बचे दो में फिर आप कनेक्शन नहीं देंगे। इट मीन्स तभी तो ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब उन दोनों के रेजिस्टेंसेस को आपको कंसिडरेशन में नहीं लेना है। तो डायग्राम कैसे बनेगा इसका सेकंड केस के लिए, देखिए सेकंड केस का जो डायग्राम आने वाला है वो कुछ ऐसा आएगा कि यहां से दो बल्ब और यहां से केवल एक बल्ब। दिस इज पॉइंट जे, यहाँ है पॉइंट के, और ये है एल, और ये कनेक्टेड है किससे, पावर सोर्स ई से, ठीक है। हम्म तो दिस इज आर आर आर। तो ये जो दो आर आपको दिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा इसका कॉम्बिनेशन का, आर बाई टू, वहां तीन थे तो आर बाई थ्री, यहाँ आर बाई टू, और ये फिर आर आ जाएगा, दैट इज आर। ये कनेक्शन है किस, इसका ई से, ठीक है। ये हो गया, दिस इज ई। आप इसको और ले लेंगे, एक फिगर और बनाएंगे, फिर क्या हो जाएगा देखिए, आर बाई टू प्लस आर इज आर प्लस आर बाई टू, तो आर प्लस आर बाई टू वो सीरीज हो गया ना, तो दिस इज एक्चुअली थ्री आर बाई टू, और यहां पर क्या आ गया, तो देखिए अब सेकंड केस में जो पावर निकल करके आएगा वो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर इक्वलेंट, मतलब ई स्क्वायर बाई आर इक्वलेंट इज थ्री आर बाय टू, तो दैट इज टू ई स्क्वायर बाय थ्री आर। तो ये P1 निकल करके आया था थ्री स्क्वायर बाय टू आर, और ये P2 निकल करके आया। तो अब दोनों का रेशो निकाल लेते हैं। तो जो रेशो आएगा P1 बाय P2, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर है ना, दैट इज P1 बाय P2, ये हो जाएगा केस वन के लिए, तो दिस इज थ्री स्क्वायर बाय टू आर डिवाइडेड बाय टू स्क्वायर बाय थ्री आर, टू ई स्क्वायर बाय थ्री आर। On further solving, this is 3e square by 2r into 3r by 2e square. So e square gets cancelled, r gets cancelled. So this is 9 by 4. So this is the answer, dear students. 9 by 4. ठीक है, तो हाँ 9 by 4, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 9:4। आप चाहे तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज the internal resistance of 2.1 volt cell which gives a current of 0.2 ampere through the resistance of 10 ohm is, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है which gives a current of 0.3 resistance of 10 ohm। देखिए दो तरीके निकालने के इसके, मतलब आई मीन आप फिगर बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, नहीं बनाना चाहें तो मत बनाइए आप, ठीक है। तो ये होता है V इज इक्वल टू, जैसे E माइनस आई आर हम लिखते हैं ना, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, अभी हमने देखा था। तो यहाँ पर 2.1 वोल्ट क्या दे दिया है हियर इन दिस क्वेश्चन, E इज एक्चुअली EMF 2.1 वोल्ट, करंट दे दिया यहाँ पर दैट इज 0.2 एम्पियर, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो निकालना है, बट यहाँ पर R दे दिया है दैट इज 10 ओम, ठीक है। और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस। सो हाउ कैन यू अप्रोच, ठीक है। सो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा ये V को पहले आप देखिए क्या है, क्या V आपको एक क्वेश्चन में दिया गया है क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया गया है। तो V निकालने के लिए अप्रोच कैसे कर सकते हैं, V के लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है ओम्स लॉ, ऑल्सो V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से V कितना निकल जाएगा 0.2 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। अब इस इक्वेशन में आप रख दीजिए, तो ये आ जाएगा, इस v की जगह पर क्या रख दीजिए 2, इक्वेशन नंबर 1। तो 2 इज इक्वल टू ई, दैट इज 2.1 माइनस करंट कितना दिया है 0.2 मल्टीप्लाइड बाय आर। सो 0.2 आर इज इक्वल टू 0.1 आ जाएगा, ये 2 उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो आर इज इक्वल टू 0.5 ओम। सो ऑप्शन बी, so this is the answer. Next, a cell having an EMF E and internal resistance R is connected
across a variable external resistance. As the resistance R is increased, the plot of potential difference V across R is given by a cell having EMF E. So again, V is equal to E minus I into R. मगर यहाँ पर वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और V के बीच में निकालना है. तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए दिस V इज इक्वल टू E माइनस I को लिखा जा सकता है E बाय R प्लस R और ये मल्टीप्लाइड बाय R. ये हो गया I का वैल्यू. ये I कैसे आ रहा है, देखिए ये इजी है, ये R है ना, ठीक है, ये EMF E है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ पर स्मॉल r, ये E है. तो इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा दोस्तों, देखो ना बच्चों, आप खुद ही देखो. I इज इक्वल टू क्या होगा, नेट EMF कितना है सर्किट में E, नेट रेजिस्टेंस कितना है R प्लस R, ऐसा होगा. इसी को मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या कर दिया था, तो आप उसको भी समझ जाए अगर यहाँ पर भी डाउट हो अगर आपको. तो इस I को V बाई R लिया था क्योंकि V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो था, इसलिए यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लिया था. बट इस फॉर्मूले में इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्लूड करेंगे, E बाई आर प्लस आर, ये आ गया. अब इस एक्सप्रेशन में देखिए R की हमको जरूरत थी और ये R हमको मिल भी गया, है ना. तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें कांस्टेंट रहने वाली है. इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेल का बदलेगा नहीं, ठीक है, तो उसके बारे में कोई कमेंट करना नहीं है. तो यहाँ पर ग्राफ देखने के लिए हम दो एक्सट्रीम कंडीशंस लेते हैं, आपको ध्यान में होगा. जब R 0 हो जाएगा तो V क्या हो जाएगा, देखिए E माइनस ई आर बाय 0 प्लस आर. तो ये हो जाएगा E माइनस ई आर बाय आर, आर आर कैंसल और ये आ जाएगा 0. तो व्हेन R इज इक्वल टू 0, V इज इक्वल टू 0. ऐसे कितने ऑप्शंस हैं, जब R 0 हो रहा है तो V 0 हो रहा है. एक है ऑप्शन ये C और एक है ऑप्शन D, R 0 तो V 0. दूसरा एक्सट्रीम कंडीशन क्या होता है, व्हेन R अप्रोचेस टू इंफिनिटी. अब इस फॉर्मूले से आप देखें, व्हेन R अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो डिनोमिनेटर जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा. तो ये पूरी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, 0 को. तो V किसको अप्रोच करेगा, E को. E माइनस 0 E. तो व्हेन R टेंड्स टू इंफिनिटी, V टेंड्स टू E. तो ये वाला ऑप्शन है. जैसे जैसे R बढ़ते जाएगा V की वैल्यू बढ़ते जाएगी, मतलब ये E और V के बीच का गैप क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा. V किसको अप्रोच कर रही है, E को. ये होता है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी. नेक्स्ट, फॉर अ सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, लिसन, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 2.2 वोल्ट व्हेन सर्किट इज ओपन. इसका मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ईएमएफ दिया हुआ है और कितना 2.2 वोल्ट, क्योंकि ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल रहता है व्हेन इन एन ओपन सर्किट, है ना. ओपन सर्किट में जो ईएमएफ मिलता है दैट वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है टर्मिनल के अक्रॉस, उसे हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं, ठीक है, ओपन सर्किट में. और जैसे ही आपने उसको कनेक्ट कर दिया किसी रेजिस्टेंस के थ्रू, तो अब पोटेंशियल जो मिलेगा, मतलब सेल के टर्मिनल्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो पहले से कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस एक्शन में आ गया, करंट फ्लो हुआ तो, ठीक है. और ओपन सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं रहता, तो हमको ईएमएफ मिलता है. तो ये ई हो गया 2.2. और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, वो कितना दे दिया 1.8. तो रेजिस्टेंस हो गया दैट इज 5 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना. अगेन डियर स्टूडेंट्स, द फॉर्मूला इज एक्चुअली, एक तो फॉर्मूला डायरेक्ट है, वो आपको याद है कि नहीं पता नहीं, इंटरनल वो पोटेंशियोमीटर में हम यूज करते हैं, दैट इज R इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय R. तो E is 2.2, V is 1.8 minus 1 and multiplied by R is that is 5. Solving, you will get 2.2 minus 1.8, that is 0.4 by 1.8 into 5, and this is actually 4 by 18 into 5, that is 4 into 5, that is 20 by 18. 4 5 is 20, yeah. So this is actually 10 by 9, option A. Next, the magnitude and direction of current in the following circuit is. डायरेक्शन निकालने के लिए आपको ना बस सेल को देखना है और उससे आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल, दिस इज 10 वोल्ट एंड दिस इज 5 वोल्ट. ज्यादा कौन है, 10 वोल्ट. 10 वोल्ट का सेंस कैसा है, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, क्लॉकवाइज का.
5 वोल्ट अगर करंट सप्लाई करेगा तो कैसा करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई डोमिनेटिंग नेचर का कौन, किसकी वैल्यू ज्यादा, 10 वोल्ट की। तो करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, क्लॉकवाइज, है ना। कहां से कहां होना चाहिए, फ्रॉम ए टू बी थ्रू ई, ठीक है। और तो ये कौन कौन से ऑप्शंस होंगे, ए टू बी वाले कितने हैं, एक ये है एक ये है, तो 50-50 तो हमने ऑलरेडी कर लिया। अब निकालना है आई। तो आई निकालने का बच्चों तरीका देखो, आप इस तरीके के क्वेश्चंस में सबसे पहले ना आप ये देख लीजिए, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए। जैसे मैंने मान लिया ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, और तो मतलब क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ऐसे ही लें, है ना। ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, बशर्ते आपने जो एक बार कमिटमेंट कर दिया, मतलब जो एक बार कन्वेंशन ले लिया उसको आप क्वेश्चन के एंड तक आपको फॉलो करना है। तो देखिए कौन सा सेल क्लॉकवाइज सेंस में करंट जनरेट करेगा, तो वो है 10 वोल्ट, तो इसको आप क्या लेकर के चलोगे, +10 वोल्ट। और कौन सा सेल एंटी क्लॉकवाइज में जनरेट करेगा, 5 वोल्ट, तो उसको क्या लेकर के चलेंगे, माइनस। तो करंट निकालने के लिए क्या करना है, नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ मतलब प्लस और माइनस का ध्यान में रखना है। 10 इस सेंस में करंट प्रोड्यूस कर रहा है तो 10 आया, और 5 एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो माइनस आएगा। और नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो नेट रेजिस्टेंस इज 2 + 1 + 7, दैट इज 2 + 1 + 7। So I is equal to 5 by 2 plus that is 10, that is 0.5 ampere। और कहां से कहां जाएगा, ए टू बी, तो ऑप्शन डी टू ई। नेक्स्ट, a set of n equal resistor of value r each are connected in series to a battery of EMF E and internal resistance R. The current drawn is I। पहले केस को बनाने का कोशिश करते हैं, सेट ऑफ n इक्वल रजिस्टर, है ना। n इक्वल रजिस्टर मतलब कि रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3, और इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, रजिस्टर R। और ये रहा बैटरी और इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो दिस इज R R R R E R। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है करंट कितना फ्लो कर रहा है, सो द करंट फ्लोइंग इज I, ऐसा दिया हुआ है ना, करंट कितना फ्लो कर रहा है, दैट इज I। ये सबसे I इस तरीके से फ्लो करने वाला है। तो दोस्तों यहाँ से एक्चुअली दिस इज केस नंबर 1 यू कैन से, है ना। तो यहाँ से I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस फिगर का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, I क्या हो जाएगा यहाँ से, मैंने जैसा कि अभी तक कहा नेट ईएमएफ सर्किट में कितना है, E, और नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये आर सीरीज में है तो कितने हैं यहाँ पर, N रेजिस्टर्स, कितना है N, तो NR, है ना। और फिर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी भी वैल्यू R है तो वो भी सीरीज में ही आएगा, प्लस R। तो दिस इज एक्चुअली E बाय R N + 1 I। सो ये I का वैल्यू केस नंबर 1 से हमने निकाल लिया, ठीक है, फिगर 1 से निकाला इसे, लेट अस सपोज दिस इज फिगर 1। नाउ द N रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो दिस इज फिगर 1, दिस इज फिगर 1। अब मैं बनाने जा रहा हूं फिगर नंबर 2। N रेजिस्टर्स जो हैं R R और इस तरीके से R R R, और यहाँ पर क्या है, सेल यानी बैटरी, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो ये E और ये क्लियर है। तो अगर केस 2 की बात करें, इफ दिस इज फिगर, है ना, ये फिगर 1 हम देख रहे थे, फिगर 1 के लिए था ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब जो मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ वो है फिगर नंबर 2 के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या होने वाला है, पहले तो ये सबके सब किस में है, पैरेलल में। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, एन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, देन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बिकम्स 10I। अब जब यहाँ पर पैरेलल में कनेक्शन कर दिए तो यहाँ से जो करंट निकल रहा है बैटरी से वो कितना है दोस्तों, 10I। यही 10I डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पर और वापस फिर यहाँ से 10I मिलेगा। यहाँ पर I था ना, यहाँ पर कितना था I, यहाँ पर कितना है 10I। सो अगेन द फॉर्मूला इज
जो हमने यहाँ पर लगाया था, जो करंट इसमें फ्लो होगा, करंट वो क्या हो जाएगा, देखिए E बाय आर इक्वलेंट, है ना। तो डायरेक्ट लगाने से पहले मैं यहाँ पर एक फिगर और बना देता हूँ। देखिए इसका इक्वलेंट फिगर कैसे बनेगा, नीचे उसको देखिए। ये आर 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 किस में है, आपके पैरेलल में है। तो सेम रेजिस्टेंस कितने हैं, एन। तो नेट इनका क्या हो जाएगा, आर बाई एन। सेकंड केस में ही चल रहे हैं हम लोग, है ना। और ये कनेक्टेड है किससे, बैटरी से, जिसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर। अब आप देखिए कि ये आर बाई एन और आर किस में है, सीरीज में है। तो यहां पर जो भी करंट निकलने वाला है वो क्या आ जाएगा, और करंट कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 10i। ये 10i का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, फिगर 2 से देखिए, इस वाले से, कि दिस 10i इज इक्वल टू, तो करंट इज इक्वल टू ईएमएफ है आपके पास E, और नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R प्लस आर बाई एन। बस यही मैं बताना चाह रहा था। सेम फॉर्मूला यहां जो लगाया था ना, I इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू नेट ईएमएफ बाई नेट रेजिस्टेंस। तो वहां का नेट रेजिस्टेंस ये था, नेट ईएमएफ ये था। यहाँ पर भी करंट इज इक्वल टू नेट ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी है, 10i। नेट रेजिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये आर बाई एन और आर सीरीज में है, तो आर प्लस आर बाई एन। ऑन फर्दर सॉल्विंग यू विल गेट एन आर प्लस आर डिवाइड बाय एन। ठीक है, तो 10i इज इक्वल टू ई एन बाय आर प्लस 1n। ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, n प्लस 1 r, दिस इज n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय r, ये आ जाएगा। ठीक है, और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़े ना, देखिए क्या निकाल रहे हैं वो मत भूल जाइएगा, द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो n निकालने के लिए i ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, e बाई आर एन प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 10i इज इक्वल टू, ऑब्जर्व, ई बाई आर एन प्लस 1, ई बाय आर एन प्लस 1, इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं, आई, और इधर क्या आ जाएगा, एन। आई आई गेट्स कैंसल्ड, वी हैव एन इज इक्वल टू 10। तो द ऑप्शन सी इज द आंसर, एन इज इक्वल टू 10। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, देखिए, हाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, a battery consists of a variable number n of identical cells having internal resistance R each। ठीक है, आइडेंटिकल सेल्स हैं तो ईएमएफ उनका ई, इंटरनल रेजिस्टेंस सब सेम रहेगा। विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर शॉर्ट सर्किटेड एंड द करंट आई इज मेजर्ड, विच ऑफ द ग्राफ। अच्छा अच्छा, तो ये देखिए इस तरीके से पहले बना लेंगे, और इस तरीके से जाते जाएगा ऐसा। तो इसका ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ऐसे कितने सेल्स हैं, वी हैव एन सेल्स, है ना। अ बैटरी कंसिस्टेड ऑफ वेरिएबल नंबर एन। ठीक है, और सबका रेजिस्टेंस आर ये दिया। शॉर्ट सर्किट कर दिया मतलब सीधी सी बात, एक वायर लिया और उससे इसको जोड़ दिया। सो करंट फ्लो निकालना है, आई। सो आई जो आएगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई का फॉर्मूला अभी तक मैंने जो आपको बताया वो क्या बताया, इस सर्किट का नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा। तो देखिए जितने भी सेल्स हैं वो सब के सब एक ही सेंस में करंट देंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लेते हैं तो सारे के सारे सेल्स क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ई प्लस ऐसे करते करते कितना टाइम्स होगा, एन टाइम्स। और नेट रेजिस्टेंस भी क्या आ जाएगा, वैसे ही आर प्लस आर ऐसे करते करते कितना टाइम्स होगा, एन टाइम्स। तो एक्चुअली ये हो जाएगा एन ई बाय एन आर, एन एन गेट्स कैंसल्ड, एंड दिस इज एक्चुअली ई बाई आर। तो जो करंट है क्या वो एन पर डिपेंड कर रहा है क्या बच्चों, देखो एन आया क्या इस एक्सप्रेशन में, नहीं आया। तो आई इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, एन आप कितना भी कम कर लो ज्यादा कर लो, आई की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है। तो आई की वैल्यू कांस्टेंट किस ग्राफ में दिख रही है, ग्राफ नंबर सी, दैट इज इक्वल टू ई बाय आर, है ना, ये वाला आएगा। सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, two cells having the same EMF are connected in series through an external resistance R. Cells have internal resistance R1 and R2 respectively. When the circuit is closed, the potential difference across the first cell is zero. The value of R is.
देखिए फिजिक्स की खासियत क्या है कि वो खुद बताता है कि करना क्या। तो पहले जो जो बोल रहा है ना, एक रफ आइडिया के लिए फिगर बना लीजिए। टू सेल्स हैविंग द सेम ईएमएफ आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस बनाया, तो ये सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, सेल्स हैव इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2, ठीक है, सेल्स हैव इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 respectively. When the circuit is closed, the potential difference across the first cell is zero, the value of R is zero. और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है यहाँ पर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ सेम है, तो ये भी ई, ये भी ई, बट इंटरनल रेजिस्टेंस एक का R1 एक का R2। एक और खास चीज दिया हुआ है, और वो क्या है यहाँ पर कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल इज जीरो। लेट अस सपोज दिस इज V1 और ये क्या आ जाएगा, लेट अस सपोज दिस इज V2। एक्चुअली दीज आर द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। एंड लेट अस सपोज द करंट फ्लोइंग इज I थ्रू द सर्किट, तो दिस इज करंट I, सब जगह I इस तरीके से, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, ठीक है, और यहाँ पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमने V1 ले लिया और V2 ले लिया। चलिए, तो जो पता है, जब कुछ समझ नहीं आया तो जो पता है पहले उसको लिखना चालू करें। वैल्यू R की निकालनी है, तो R निकालने के लिए अप्रोच किया जा सकता है, किरचॉफ रूल लगाया जा सकता है ना, एक्सप्रेशंस लिए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज जीरो, अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ फर्स्ट सेल इज जीरो। तो V1 इज इक्वल टू क्या निकल करके आएगा, दिस इज E माइनस आई आर वन, इजंट इट। और ये कितना दिया हुआ है, जीरो, तो दैट इज E माइनस आई आर वन। तो I इज इक्वल टू E बाय आर वन। तो ये आ गया पहला एक्सप्रेशन। दूसरे की जब बात करेंगे तो यहाँ पर लिसन, फिर से V2 को क्या लिख सकते हैं, E माइनस आई आर टू। देखिएगा, अप्रोच समझिएगा, सेम फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, V2 के लिए लगा सकते हैं E माइनस आई आर टू। बट दोस्तों उससे होगा क्या, E आ गया, I आ गया, R2 आ गया, हमको कमेंट किसके बारे में कर रहे हैं, R के बारे में। क्या वो आया, क्या नहीं आया, इसलिए रुकेंगे, उसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो फिर क्या अप्लाई करें, हमको कुछ ऐसा इक्वेशन लगाना है, एटलीस्ट एक इक्वेशन हम ऐसा लगाएं जिसमें कैपिटल R भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अभी तक जो मैंने आपको बताया, इस पूरे सर्किट में देखिए, अगर हमको करंट I निकालना है तो मैंने लिखा ऑल्सो I इज इक्वल टू, इस पूरे सर्किट में देखिए अगर करंट निकालना है तो क्या करेंगे, नेट ईएमएफ। तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, E प्लस ई एंड नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो R1 नेट रेजिस्टेंस क्या, R1 प्लस R2 प्लस R, R1 प्लस R2 प्लस R। सो दिस इज द वे वी अप्रोच इट। अब I की जगह पर आप रख दीजिए E बाय R1 इज इक्वल टू E प्लस ई, दैट इज 2E बाय R1 प्लस R2 प्लस R। तो E कैंसल, और फ्रॉम हियर यू विल गेट R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R इज इक्वल टू 2 टाइम्स R1, 2 टाइम्स R1। सो यहां से क्या हो जाएगा, R2 प्लस R इज इक्वल टू 2R1 माइनस R, दैट इज R1, R इज इक्वल टू R1 माइनस R2। तो आप ये अप्रोच समझ रहे हैं ना, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने यहां पर लगाया, I का वैल्यू आ गया R1 के टर्म में, बट सेकंड केस में नहीं लगाया था क्योंकि हमको R चाहिए था। इस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से। तो R इज इक्वल टू R1 माइनस R2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, टू बैटरीज, वन ऑफ द EMF 18 वोल्ट्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। अच्छा, ये दूसरा बैटरी दिया 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम आर कनेक्टेड एज शोन। द वोल्टमीटर विल, अच्छा, वोल्टमीटर कितना रीडिंग रिकॉर्ड करेगा वो है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो वोल्टमीटर है ना, इट डजंट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द ओरिजिनल सर्किट, it doesn't draw any current from the circuit, ठीक है। ये कब ऐसा होता है, जब
आइडियल वोल्ट मीटर लेकर के चलते हैं, और जब तक क्वेश्चन में कुछ कमेंट नहीं किया है तो हम इसको क्या लेकर के चलेंगे, आइडियल वोल्ट मीटर। तो बच्चों समझने वाली बात यह है, तो क्या इस ब्रांच में कोई करंट आएगा, क्या इस ब्रांच में कोई करंट आएगा, नहीं आएगा, करंट केवल यहीं यहीं घूमता रहेगा, ऐसा इस नीचे वाले लूप में 18 वोल्ट से निकलेगा यहाँ से, सपोज आई है, उतना ही आई यहाँ पर, ऐसा नहीं कि कुछ इधर चले जाएगा ना, वोल्ट मीटर मतलब आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर कोई भी करंट नहीं जाने वाला, ठीक है, इट डज नॉट ड्रा एनी करंट, तभी तो वो एक्यूरेट रीडिंग देगा। और ये आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ते भी हैं कि इसको प्रैक्टिकली ये कैसे काम करता है। आई, तो इस पूरे नीचे वाले लूप में कितना करंट फ्लो करने वाला है, आई, तो पहले हम आई की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर हम वोल्ट मीटर कितना रीडिंग देगा वो निकाल लेंगे। तो आई क्या आ जाएगा, इस सर्किट में देखिए नेट ईएमएफ कितना है आपके पास, तो देखेंगे एक डायरेक्शन को, मैंने इस डायरेक्शन को मान लिया पॉजिटिव, तो ये वाला जो सेंस है क्लॉकवाइज वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, करंट के सेंस की बात हो रही है। तो जो 18 वोल्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट देगा, तो उसको हम पॉजिटिव लेकर के चलेंगे, और 10 वोल्ट जो है वो 12 वोल्ट जो है वो क्लॉकवाइज में देगा, तो उसको नेगेटिव लेकर के चलेंगे। तो करंट निकालने के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करिए, I इज इक्वल टू नेट ईएमएफ, तो नेट ईएमएफ में 18 को प्लस लिया क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट देगा, -12, और नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 + 1 दैट इज 3, so 18 minus 12 is 6/3, तो I is equal to 2 एम्पियर। तो ये तो पहला टास्क आ गया। अब वोल्टमीटर जो रीडिंग देगा दोस्तों, वो एक्चुअल में कौन सा रीडिंग देगा, देखिए ये दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, सीधी सी बात, भाई यही ना देगा वो। तो लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट ए, लेट अस सपोज this is point A and this is point B, तो VAB क्या निकल करके आ जाएगा, देखिए तो VAB, तो एक्चुअली VAB इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, तो VAB इज इक्वल टू वही वाला फॉर्मूला E माइनस आई आर, तो यहाँ पर E कितना है 18, I कितना फ्लो कर रहा है 2, और R इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2, तो ये आ जाएगा 18 - 4 दैट इज 14 वोल्ट। ऑप्शन कौन सा है, डी। नेक्स्ट, three resistors having resistances R1, R2 and R3 are connected as shown in given circuit. The ratio I3 by I1 of the currents in terms of resistances used in the circuit is, it's very simple। जो मैंने रेशो वाला आपको बताया था, देखिए नीट 21 अभी का जो पैटर्न मैंने कहा रेशो का ही चल रहा है। सो सबसे पहले देखिए इज R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो अभी हम शुरू से देखते आ रहे हैं, तो I3 by I2 अगर मैं करता हूँ, I3 by I2, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो इनवर्स रेशो, I3 किसके करस्पॉन्डिंग है, R3 के करस्पॉन्डिंग, तो R3 नीचे आएगा, और I2 किसके करस्पॉन्डिंग करंट है, R2, तो R2 का आएगा ऊपर। बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू दैट इज I3 by I1। इन दिस एक्सप्रेशन I2 इज यूज्ड, यहाँ पर I2 है, तो हमको किसी भी तरीके से इसको क्या करना है, यहाँ पर I1 लाना है। ऑब्जर्व केयरफुली, ये I1 जो आ रहा है ना, एक्चुअली यही I1 तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो I1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, I2 प्लस I3, यही I1 कुछ इधर गया कुछ इधर गया, तभी तो किरचॉफ्स जंक्शन रूल सेटिस्फाई होगा ना इस फॉर्मूले से। तो I1 अगर I2 प्लस I3 है, तो यहाँ से I2 क्या हो जाएगा, I1 माइनस I3, तो रिप्लेस I2 with I1 minus I3 is equal to R2 by R3। चलिए निकालना क्या है हमको, I3 by I1, I3 by I1। तो देखिए फिजिक्स का ब्यूटी देखें आप, क्वेश्चन खुद हमें बताता है कि हमें करना क्या है। अब I3 निकल गया हमारा, I3 by I1 है, तो क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए I1 से। अब फिजिक्स तो ये बता दिया कि क्या कर रहे हैं, I3 by I1 चाहिए तो हमने डिवाइड कर दिया, बट अब मैथ से ये बताएगा कि भाई डिवाइड केवल ऊपर नहीं करेंगे, अगर केवल ऊपर डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही बदल जाएगा, तो ऐसा तो नहीं करेंगे। तो बाय फॉलोइंग द लॉज ऑफ मैथ्स, रूल्स ऑफ मैथ्स, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय I1, तो ये मिलेगा I3 by I1, फिर यहाँ पर आएगा I1 by I1 माइनस I3 by I1 इज इक्वल टू R2 by R3।
ठीक है, तो ये सॉल्व करने पर क्या मिल जाएगा आपको, देखिए I3/I1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस I3/I1 इज इक्वल टू R2/R3। सो लेट मैंने ले लिया I3/I1 बार बार लिखने से अच्छा मैंने इसको K ले लिया, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, K/1 माइनस K इज इक्वल टू R2/R3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, देखिए K R3 इज इक्वल टू R2 1 minus K. So this is K R3 R2 minus K R2. So K R3 plus K R2 is equal to R2. So K R2 plus R3 is equal to R2 implies that K is equal to R2 by R2 plus R3 and इसी K को क्या लिया था हमने, that is I3/I1. So hence solved. ये आ गया R2/R2 plus R3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, for the circuit shown in the figure the current I will be, अगेन देखो सेम मैंने बताया आपको, सिंपल अभी तक मैं जो बताते आ रहा था। I इज इक्वल टू निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, नेट EMF देखते थे ना हम, ठीक है, और नेट EMF में देखते थे कि कौन सा EMF एक सेंस में दे रहा है, जैसे यहाँ पर 1 वोल्ट और 2 वोल्ट दोनों ही एक ही सेंस में करंट प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों को ऐड कर दिया तो दैट इज 2 + 1, और नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर 1 + 1 + 4, दैट इज 1 + 1 + 4, so this is 3/6 1/2 ampere, that is 0.5 ampere, option D। next, for the circuit given below the Kirchhoff's loop rule for the loop BCDEB, सबसे पहले ना मैं इसको लगाना कैसे है वो आपको बता देता हूँ, प्लस कब लेते हैं और माइनस कब लेते हैं। देखिए सबसे पहले व्हेन पोटेंशियल, आप किसी भी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, अगर उस डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है तो आप उसको क्या लेकर के चलेंगे, प्लस लेकर के चलेंगे, है ना। मतलब कि अब इसके दो केसेस हो सकते हैं, उसको समझिए। मतलब if you move in the direction of against direction of current, if you move against direction of current, और दूसरा क्या होगा, if you move from negative to positive terminal of the battery, आप इस तरीके से अगर मूव कर रहे हैं, इसको क्या लेकर के चलेंगे आप, पॉजिटिव। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, आप ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, आप जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आप आई आर को क्या लेकर के चलेंगे, प्लस आई आर, और यहाँ पर माइनस से प्लस जा रहे हैं आप, तो ई को क्या लेकर के चलेंगे, प्लस ई, है ना। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर करंट की ऑपोजिट, करंट राइट टू लेफ्ट आ रहा है, बट आप मूव कर रहे हैं लूप में लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं हम किर्चॉफ्स लूप रूल में, वो आई आर होगा, तो उसको क्या लेंगे, प्लस लेंगे, क्योंकि आप करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। सिमिलरली व्हेन पोटेंशियल ड्रॉप्स, आप क्या लेकर के चलेंगे, नेगेटिव। अब इसके भी वैसे ही दो केस हैं, डायग्राम से बता देता हूं आपको। आप ऐसे जा रहे हैं और करंट भी ऐसे जा रहा है, ठीक है, दिस इज आर और ये करंट है, तो आप इसको क्या लेकर के चलेंगे, माइनस आई आर। दूसरा केस, आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और ये है आपका, तो यहाँ पर आप इसे क्या लेकर के चलेंगे, माइनस ई, ठीक है। तो ये है इफ यू मूव, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जा रहे हैं, माइनस ई, करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, माइनस ई। ये भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये माइनस लेकर के चलते हैं, ये कन्वेंशन है। तो क्या कंक्लूजन निकला, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस, प्लस में जा रहे हैं तो यानी अगेंस्ट जा रहे हैं तो प्लस, सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो माइनस, और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस। सेम यही आपका जो क्या बोलना चाहिए, ये जो रूल है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, तो आप इसको ही फॉलो करेंगे, किसी भी रिफ्रेशर वगैरह का हेल्प लेने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, फॉलो एनसीईआरटी।
एंड यू विल रॉक। चलो बी सी, तो लूप कौन सा है, बी सी डी ई बी। मैं तो आपको बैकग्राउंड बता रहा था, बी सी डी ई बी। तो कहाँ से चालू करें, यहाँ से अगर चालू करें तो ये करंट के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, देखिए बी से सी क्या आएगा, -I2R2। उसके बाद जब इस तरफ आएंगे तो प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो -E2, फिर यहाँ पर +E3, और ये आ जाएगा करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो +I3R1 इज इक्वल टू 0। तो -I2R2 है ना, फिर -E2 +E3 +I3R1, ठीक है। -I2R2 -E2 +E3, और ये आ जाएगा +I3R1 इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है देखिए। और इसको आप क्या लिख सकते हैं देखिए, तो I2R2 +E2 -E3 -I3R1 इज इक्वल टू 0। देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ध्यान से देखें आप, ठीक है, लूप BCDEB में। तो ये -I2R2 है, ठीक है। इसके बाद आना चाहिए था -E2, लेकिन यहाँ -E2 है ही नहीं। ये -I2R2 है, लेकिन यहाँ पर भी -E2 नहीं है। कोई बात नहीं, पूरे इक्वेशन को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, फिर देखते हैं। तो ये वाले को देखिए, I2R2 +E2 -E3 -I3R1, तो ऑप्शन बी, ठीक है। ऐसा घबराना नहीं है, नहीं है करके। नेक्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इन द गिवन फिगर, ठीक है। करंट कितना दिया है, 2 एम्पियर। ये जो करंट है दिस इज एक्चुअली 2 एम्पियर। इट इज वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट्स। देखिए चालू करिए VA से किर्चॉफ्स रूल लगाना। तो VA को लिखा प्लस, फिर करंट के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, IR माइनस में आएगा, तो -2 × 2। उसके बाद फिर सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में जा रहे हैं, तो -3। फिर करंट के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, -2 × 1। और फाइनली फिर इसको क्या लिखेंगे, -VB। जब कभी भी लूप क्लोज ना हो तो इस तरीके से लिखते हैं, जहां से भी आप स्टार्ट कर रहे हैं उसको प्लस ले लीजिए, और जहां पर खत्म हो रहा है उसको माइनस ले लीजिए। तो आपको VA माइनस VB, और ये क्या हो जाएगा, इसको 0 कर दीजिए। तो यहाँ पर VA माइनस VB जो है ये आ जाएगा 2 2 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9 वोल्ट। उस तरफ जाएगा तो ये हो गया, दैट इज D। नेक्स्ट, in the circuit shown, the cells A and B have negligible resistances. For VA is equal to 12 volt, R1 is equal to 500 ohm, ठीक है। VA 12 है, R1 दे दिया है दैट इज 500 ohm, और R है दैट इज 100 ohm। R कितना दे दिया है, 100 ohm। The galvanometer shows no deflection, the value of VB is। अच्छा, ये सारी कंडीशंस हैं, है ना, जिसके लिए, और ये R इज इक्वल टू है दैट इज 100 ओम। ये कंडीशंस हैं जिसके लिए गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। तो यहां पर अगर मैं 2 पॉइंट्स ले लूं, लेट अस सपोज दिस इज, और इसको मैंने ले लिया, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। If galvanometer is not showing any deflection, it means that the current through this branch, galvanometer branch, is 0. And it is only possible when this potential difference created by cell is equal to potential difference between these 2 points. तो यहाँ पर ना ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनका मैं नाम थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि VAB ऑलरेडी यूज किया जा चुका है। इनका नाम ले लेते हैं, लेट अस सपोज दिस इज M एंड दिस इज N। और ये तभी पॉसिबल है बच्चों जब ये जो VB है ये किसके बराबर हो जाए, VMN के बराबर। क्योंकि जितना फोर्स फिर ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा, तो उस पर्टिकुलर केस में इस ब्रांच में करंट कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए और यहाँ पर वो किसके बराबर होगा, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, VB सेल प्रोवाइड कर रहा है, और वो किसके बराबर होना चाहिए, VMN के। जब ये दोनों पोटेंशियल फिर सेम हो जाएंगे तब इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर आपको पूछ रहा है वैल्यू ऑफ VB, तो आप क्या निकालना है, आपको VMN किसके बराबर होगा, VB के बराबर। और VMN निकालने के लिए अगेन सेम चीज, यहाँ पर VMN कितना निकल करके आएगा देखिए, तो
ओम्स लॉ से इस ब्रांच में करंट कितना जा रहा है I और रेजिस्टेंस कितना है 100। सो दिस इज 100 I। अब I को कैलकुलेट करना है, तो I को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या दिया हुआ है, तो VA की वैल्यू दी गई है हमारे पास, है ना। इस वाले ब्रांच में देखिए अब इधर तो करंट जाएगा नहीं, पूरा करंट इधर ही फ्लो करने वाला है ना। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू, इस लूप में देखिए, इस वाले लूप में कितने सेल्स हैं, एक ही सेल्स V, दैट इज 12। नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा इसका 500 प्लस 100 दैट इज 600। तो यहाँ से VMN में रख देंगे आप, तो 100 आएगा एंड दिस इज I मतलब 12/600 कैंसल, और ये कितना आ जाएगा 12/6 इज 2 वोल्ट। सो द आंसर इज 2 वोल्ट, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, है ना। इसमें बस एक चीज ये समझना था कि भाई ये जो सेल गैल्वेनोमीटर में कोई करंट है नहीं, इसका मतलब जितना एफर्ट ये वाला सेल लगा रहा है ना, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल लगा रहा है, उतना ही एफर्ट ये एम भी लगा रहा है। तो दोनों तरफ से पुशिंग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब जाके दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं रहेगा। इसलिए हमने VMN को VB के बराबर रखा है, ठीक है ना। अगर VMN का, अगर ये VM ज्यादा हो जाता तो यहाँ से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाता, और अगर कम हो जाता मतलब VB ज्यादा हो जाता तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाता। मगर इस ब्रांच में कोई भी करंट जा ही नहीं रहा है, इसका मतलब जो पोटेंशियल सेल प्रोवाइड कर रहा है सेम पोटेंशियल VM भी प्रोवाइड करना चाहिए, इसलिए हमने इसको, इन दोनों को क्या ले लिया था, इक्वल ले लिया था, ठीक है। नेक्स्ट, सेम पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट है। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज टेकन टू बी 0। ये जो VA है यहाँ पर वो कितना दे दिया है आपको, 0 दे दिया। पोटेंशियल VA इज इक्वल टू 0। द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, पॉइंट बी में पोटेंशियल निकालना है, तो देखिए करंट वगैरह दिया है हमको तो उससे हम निकालेंगे, बट ना ब्रांच को देखना पड़ेगा। जैसे अगर आपको बी निकालना है तो यहाँ बी जाने के ये रास्ता भी है, ये वाला रास्ता भी है, बट इस रास्ते से जाएंगे तो R1 की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता। इस रास्ते से जाते हैं तो फिर ये वाली रेजिस्टेंस अननोन है, तो एक रास्ता ये बचता है, यहाँ से ऐसे गए, ये गए और फिर ये गए। अब देखिए इस ब्रांच में आप बोलेंगे सर करंट भी तो नहीं पता, तो करंट ऐसे निकल जाएगा बच्चों। देखो यहाँ पर कितना दिया है, इस ब्रांच में देखिए करंट देखिए कितना आ रहा है, इधर 2 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए 2 एम्पियर, इस यहाँ पर भी कितना होना चाहिए 2 एम्पियर। अब ये यहाँ पर जंक्शन आया, तो जंक्शन में इधर कितना चले गया 1 एम्पियर, तो इस तरफ नीचे कितना आ जाएगा, दिस इज अगेन 1 एम्पियर। और देखिए यहाँ से 1 एम्पियर चलते आ रहा है, 1 एम्पियर 1 एम्पियर, यहाँ से 1 एम्पियर आया, फिर इस पॉइंट में जंक्शन दोनों मिलेंगे और ये कितना हो गया 2 एम्पियर। तो जंक्शन रूल हमने सेटिस्फाई कर लिया। तो हम कौन सा रास्ते से जा रहे हैं, रास्ता है ए सी डी बी, ए सी डी बी। सो अप्लाई करें तो सबसे पहले अभी कुछ देर पहले हमने सीखा, जिस पॉइंट से चालू कर रहे हैं उसको लिखते हैं VA। फिर देखिए यहाँ पर माइनस आएगा कि प्लस आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि माइनस से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, प्लस आएगा। फिर यहाँ गए करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1 इंटू 2, ये प्लस 1 इंटू 2। उसके बाद फिर इस तरफ जाते गए, फिर यहाँ से D के बाद जाना है B की तरफ, तो प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो हो जाएगा -2, फिर माइनस VB इज इक्वल टू 0। हमको VB पूछ रहा है ना, पोटेंशियल एट पॉइंट B, और VA कितना दिया है 0। सो दिस इज 1 + 2 3, 3 - 2 1, तो 0 + 1 minus VB is equal to 0, implies that VB is equal to 1 volt. This is the answer, 1 volt, option D. Next, consider the following two statements. Kirchhoff's junction law follows from the conservation of charge. Yeah, this is correct. Kirchhoff's loop law follows from the conservation of energy. This is also correct. So both statements are correct. Both are correct. Option D. Next, see the electrical circuit shown in the figure. Which of the following equations is the correct equation for it? So E1 minus I1 plus I2. Where is I1? अच्छा, this is I1 plus I2 R, ठीक है, minus I1 R1, ठीक ठीक। E2
माइनस I1 R2 माइनस I1 R2 E2 I1 + I2 E2 I1 + I2। देखिए इक्वेशंस आपको चूज करना है। तो वैसे तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं, बट कौन से लूप को लिए है उसको देखना जरूरी है। जैसे यहाँ पर कैपिटल आर है और स्मॉल आर है ना। तो कैपिटल आर है और सॉरी R1 है, तो R2 का जिक्र है नहीं, मतलब कौन सा लूप होना चाहिए, ऊपर वाला लूप है ना। तो ऊपर वाले लूप के लिए अगर हम लिखना चाहें, अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहूँ तो कैसे आएगा, देखिए E1 आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस से प्लस में जा रहे हैं, माइनस I1 R आएगा, माइनस I1R, और फिर ऐसे घूम करके यही I1 रहेगा, फिर यही I1, और फिर यहाँ पर यही I1 आ जाएगा। तो ये भी कैसा रहेगा, माइनस I1R1 रहेगा, माइनस I1R1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से रहना चाहिए। बट ध्यान देंगे एक चीज, ये जो I2 है दोस्त बच्चों, ये इधर जा रहा है कि नहीं, है ना, और इधर से कितना आ रहा है, I1 आ रहा है। तो इस ब्रांच में करंट कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। ये ध्यान देने वाली बात है, दिस इज लॉजिक। ये कितना होगा, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। फिर इस जंक्शन में I1 इधर चले जाएगा और I2 इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने I1R लिखा है वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, I1 प्लस I2R, है ना। कैसे आएगा ये, माइनस I1 प्लस I2R माइनस I1R1। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट आ गया, ऑप्शन ए, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ। देखो फर्स्ट एंड सेकंड, तो पहले क्या है, फर्स्ट। तो फर्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड सेकंड इज एनर्जी। तो ये होना चाहिए, सीक्वेंस को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉलोज फ्रॉम ओनली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बाकी नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। कंजर्वेशन सॉरी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ओनली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। दोनों है नहीं, समटाइम्स का तो बात है नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर डियर स्टूडेंट्स। मे बी द लेक्चर बिकम्स थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, इट्स ओके, बट आपके 37 ईयर्स के क्वेश्चंस हो रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जिसमें कॉन्सेप्ट जो है रिपीटेड है। अगर आप इसको पेन और कॉपी लेकर के प्रैक्टिस के साथ बैठेंगे, लेक्चर्स को बड़ा सीरियसली लेंगे, सो आप बहुत ही बेनिफिट में रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा, है ना। क्योंकि इनके साथ साथ मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आपको एक बेसिक आइडिया भी देते चल रहा हूँ। जहाँ जहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी के जैसे ट्रिक्स आए, ट्रिक्स को यूज़ कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, उसको मैं आपको बताते चल रहा हूँ। एंड आई एम कम्प्लीटली डेडिकेटेड। अगर किसी भी टॉपिक में, किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको डाउट होता है तो आप कहिए, मैं उसको फिर से पर्टिकुलर, जैसे प्रोपोर्शनलिटी वाले में अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं प्रोपोर्शनलिटी के ही 30 से 40 क्वेश्चंस लेकर के एक लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँगा आपके लिए, जिससे कि आपका प्रोपोर्शनलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अभी मजबूरी है, एक-एक क्वेश्चन में उतना टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि फिर जो स्टूडेंट्स को सिर्फ पीवाईक्यूज़ चाहिए उनके लिए फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना, और ये सीरीज़ तो उसी के लिए है। तो हाँ, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, किसी क्वेश्चन में ज़्यादा डाउट आ रहा है, समझ नहीं आया, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। Within 24 hours we will get the detail of that particular topic along with some 30 to 35 questions for practice। अभी भी आप पेन और कॉपी लेकर के करेंगे तो रास्ता बहुत स्मूथ रहेगा। अभी भी टाइम गया नहीं है, आप मेरे साथ साथ भी चलेंगे तो इस अप्रैल मंथ में पूरे जितने हैं अभी तक, जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने चैप्टर्स हैं फिजिक्स में, सारे कवर कर लेंगे हम, ठीक है। सो होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू, गुड लक।